A very good morning to most honorable principal sir, all beloved teachers, especially the women. Today it is a great occasion that we are going to celebrate or observe this International Women's Day in Kendriya Vidyalaya Khairagarh, and I wish on behalf of entire Kendriya Vidyalaya Khairagarh family a very happy International Women's Day. This day is celebrated on 8th March every year globally. So we will celebrate this in this campus, in this premises. Before that, to inaugurate this program, I would like to invite Honorable Principal Sir, along with some senior teachers, HM Madam, Rachna Par Madam, Aman Madam, and all the lady teachers who wants to come for the lighting of the lamp and garland the portrait of Ma Saraswati. HM Madam, respected Aman Madam, Monica Sharma Madam, and Lalita Madam, please आइए. गरिमा मैडम आप भी आइए ना, आप रहती हैं हमेशा. Thank you, Honorable Principal Sir, and all the lady teachers. So, यत्र नाद्यस्तु पूज्यते रमंत्रे तत्र देवता. ये कहावत चरितार्थ होती है. ये प्राचीन काल से ही ये श्लोक प्रचलित है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जिस जगह पे नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है. So to observe this day, as we all know that this International Women's Day is celebrated on 8th March, and this is the day to celebrate the social, economic, political achievement of women, and it reflects on progress and demand for gender equality. For over 100 years, International Women's Day has put the spotlight into issues affecting women all over the world. Today, International Women's Day belongs to everyone who believes that women's rights are human rights. So the theme for this year 2023 is Embrace Equity, as respected Monica Sharma has today announced in the morning assembly. So this day focuses on gender equality. So dear students, dear teachers, we celebrate this day across the world, and this less than 15% of world's countries have a female leader. Only 25% of senior managers are women, and 25% of companies have no female senior managers at all. So women do the lowest paid jobs and earn less money for the same work. This difference in pay is called the gender pay gap, and for young women in many places, including Britain and the US also. So this gap is getting worse. Women are also more likely to do most of the household's work and household chores, child care, etc. So all of these problems affect women of color even more than they do white women. So respected teachers, so we are celebrating or observing this day just to create a feeling of, just to make you remember that we should not feel any kind of gender
stereotype. We should be every human being, male or female, both are equal. So this is the theme of this International Women's Day celebration. So to throw the light on this topic today, on this celebration, I would like to invite first of all Goli Gupta sir from primary section. Goli Gupta sir, you are invited to please come and share your views on this International Women's Day. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब हम 5th 6th में थे, कक्षा 5वीं 6ठी में, तो बहुत सारे दोस्त थे हमारे। तो दोस्तों की जो बड़ी बहनें थी, तो वो 9th में 10th में थी। जब उनकी पढ़ाई हो गई 10th, तो कुछ पास हुए, कुछ दुर्भाग्यवश पास नहीं हो पाए, तो 10वीं के बाद ही तुरंत उनकी शादी कर दी गई। तो ये हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो पहले के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो महिलाओं को उतना अवसर नहीं मिलता था। तो अब लेकिन अभी के समय में स्थिति बदल रही है और महिलाएं बहुत ही आगे आ रही हैं, अपने आप को साबित कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। अभी हम जैसे बात करेंगे, जो 11 साल या 12 साल की एक बच्ची है श्रेया, जो केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ रही है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और अभी क्रिकेट में बात करें या अन्य खेलों में बात करें, तो जो 15-16 साल की लड़कियां हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। और वहीं अगर हम कुछ साल पहले देखें, 10-15 साल 20 साल पहले, तो वही 15-16 साल की एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो उनको उतना अवसर नहीं मिलता था। तो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो ये इनिशिएट लिया गया है, तो धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस के कारण अभी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहुत ही आगे आ रही हैं। मैंने एक कविता लिखी थी, हो सकता है इसमें कुछ गलतियां भी हो। 2019 में मैंने लिखी थी, तो व्याकरण के हिसाब से हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए। इस कविता का जो शीर्षक है वो है ममता की मूरत। जैसे हमने अपने घर में देखा है, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो हमेशा घर को संभाल के रखती हैं और बच्चों को एक तरह से हमेशा मार्गदर्शन देती हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कविता के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ। मेरी औकात नहीं इतनी तेरा गुणगान मैं कर दूँ, मेरी औकात नहीं इतनी तेरा गुणगान मैं कर दूँ, तेरी महिमा है सागर सी असंभव है बयां कर दूँ। करूँ कोई मैं गुस्ताखी आस माफी की करता हूँ, करूँ कोई मैं गुस्ताखी आस माफी की करता हूँ, तेरी शक्ति की शब्दों से अभिवादन मैं करता हूँ। चाहे माँ हो या भगिनी, चाहे माँ हो या भगिनी या रूह की अक्ष बनती है, चाहे माँ हो या हो भगिनी या रूह की अक्ष बनती है, तेरी सूरत से ममता की छवि पावन झलकती है। मैंने मंदिर को देखा है, मैंने मस्जिद भी जाना है, मैंने मंदिर को देखा है, मैंने मस्जिद भी जाना है, मगर ईश्वर से भी बढ़कर बस तुझे ही माना है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बस तुझमें समाई है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बस तुझमें समाई है, तू ही मीरा की भक्ति है, तू ही झांसी की रानी है। तुझे क्या नाम मैं दे दूं, तुझे क्या नाम मैं दे दूं, महत इंसान बनाती है, तेरी सूरत से ममता की छवि पावन झलकती है, छवि पावन झलकती है। सभी कष्टों को हंसकर भी, सभी कष्टों को हंसकर भी सदा चुपचाप सहती है, सभी कष्टों को हंसकर भी सदा चुपचाप सहती है, कभी चुपकर रो लेती है मगर कुछ भी न कहती है। तू ही जख्मों की मरहम है, तू ही जख्मों की मरहम है, तू ही ममता की उद्गम है। कभी शोला बरसाती है, कभी शोला बरसाती है, कभी ममता लुटाती है, कभी शोला बरसाती है, कभी ममता लुटाती है। हमने देखा है महिला को झांसी की रानी के रूप में जब वह रक्षा करने पर आ जाए तो दुश्मनों पर बहुत ही आक्रामक रूप से टूट पड़ती हैं, और जब अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने की बात आई तब भी वह हमेशा आगे बढ़कर आती है। माँ अम्बे का रूप है तू, माँ अम्बे का रूप है तू, सभी रूप दिखाती है, तेरा मोल है अनमोल, तेरा मोल है अनमोल, सारे कष्ट भी हरती है।
तेरा मोल है अनमोल, सारे कष्ट भी हरती है, तेरी सूरत से ममता की छवि पावन झलकती है, छवि पावन झलकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर, आपने बहुत ही सही बताया। स्टीरियोटाइप जो है, मेरा मानना है कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे फैमिलीज की, लेकिन अभी भी बहुत भारत में अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा इंटीरियर और बैकवर्ड तरह में जाते हैं तो वहाँ अभी भी फीमेल्स के लिए एक उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं, लेकिन शिक्षा एक वो यंत्र है, वो हथियार है जिसके माध्यम से धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और लड़कियां भी, गर्ल्स भी आगे आ रही हैं। वो आगे जाके महिलाएं बनेंगी, सशक्त महिलाएं बनेंगी, देश का विकास होगा और बहुत सारी चीज़ें वो चेंज कर पाएंगी। एक छोटी सी चिंगारी ही बहुत बड़ा आग लगाती है। तो एक कविता है, मैं पढ़ता हूँ कि हे जगत जननी तेरे आने पे क्यों न होता सच्चा हर्ष है। हे जगत जननी तेरे आने पे होता क्यों न सच्चा हर्ष है। जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता तेरे अस्तित्व का संघर्ष है। फिर परों को बांधकर तुझे ऊंचा उड़ने को कहा जाता है। फिर परों को बांधकर तुझे ऊंचा उड़ने को कहा जाता है। ये मर्यादा तोड़ने वाला समाज कहता है बेटा दायरे में रहा जाता है। सबकी इच्छा पूर्ति में ही तेरी अपनी इच्छा कहीं खोसी जाती है। सबकी इच्छा पूर्ति में तेरी अपनी इच्छा कहीं खोसी जाती है। अक्सर सबकी खुशी में ही शामिल तेरी अपनी खुशी हो जाती है। सुबह से शाम तक बस लगी रहती है तू किसी मशीन की तरह। सुबह से शाम तक बस लगी रहती है तू किसी मशीन की तरह। सभी रिश्तों को एक साथ सींचा करती है तू किसी जमीन की तरह। पर कभी कभी तो थक कर दम लेने का तुझको भी अधिकार है। पर कभी कभी तो थक कर दम लेने का तुझको भी अधिकार है। कभी तो कोई आकर कहे कि तेरे भीतर की नारी से उसे प्यार है। इतने पर भी किसी से हंसकर बोलने का अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। फिर तो न्यूनतम सम्मान की जमीन भी पैरों तले से चुरा ले जाते हैं। पर तू फिर भी सब कुछ सहकर अपने लबों को सिल लेती है। कभी कभी तो आंसू बहाने को तू खुद से ही गले मिल लेती है। फिर से उठ खड़ी होती है और फिर से खुशियां फैलाती है। तू फिर से उठ खड़ी होती है और फिर से खुशियां फैलाती है। सच बता आखिर तू इतनी हिम्मत कहां से लाती है। सच बता तू आखिर इतनी हिम्मत कहां से लाती है। सच में तेरे हौसलों के आगे सर झुकाते जमीन और आसमान है। सच में तेरे हौसलों के आगे सर झुकाते जमीन और आसमान है। आज हर क्षेत्र में बना चुकी तू अपनी अलग अमिट पहचान है। पर माफ करना पहले खुद नारी को ही नारी का सम्मान करना होगा। पर माफ करना पहले नारी को ही नारी का खुद सम्मान करना होगा। एक दूसरे का हमेशा साथ देकर हौसला भीतर भरना होगा। और क्या कहूँ कि पत्नी, गृहिणी, माँ, बहन, बेटी हर रूप में तू आदर्श है। बाधाओं के सीने पे चढ़कर परचम लहराते नारित्व का तू चरमोत्कर्ष है। हाँ तू दुर्गा, शारदा, लक्ष्मी, काली सभी देवियों का संयुक्त अवतार है। हे जगत जननी तेरे जगत में आने पर क्यों ना होता सच्चा हर्ष है। तो ये एक कविता है, ये भी मेरे ताऊजी के द्वारा लिखी गई है। बहुत सुंदर कविता मुझे लगी तो सोचा सुना दिया जाए। और इसमें बहुत सारी असलियत को बयां किया है। और लेकिन चीज़ें बदल भी रही हैं और महिलाएं आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा रही हैं जहां पहले वो सोचती भी नहीं थी। बहुत सारे बंधन होते थे, स्टीरियोटाइप होते थे, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है और आगे बहुत बदलेगा। आगे मैं इनवाइट करता हूँ, अब अभी मिथिलेश सर आ चुके हैं। मिथिलेश सर आएँ और अपना 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्याध्यापिका और सभी आदरणीय शिक्षक वृंद, हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद, कार्यक्रम के इस अपने वक्तृत्व को शुरू करने से पहले
आप सभी को यानी हमारे विद्यालय परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं आपको एक दिन पूर्व ही समझ लीजिए या आपको इस महिला दिवस की बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं। महिला दिवस के अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा महिला दिवस के अवसर पर कि ये दिन क्यों विशेष है। मैं समझ सकता हूं कि हम में से सभी जानते होंगे कि महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं। आपको भी पता होगा कि यूएन ने इसकी शुरुआत की थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे भी बहुत रोचक कहानियां हैं कि महिला दिवस मनाने का औचित्य क्या है और 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, बट महिला दिवस के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जैसे संसार में जो मुख्य प्रवाह में जो है पुरुष और महिलाएं, तो इसमें हमने देखा है कि नारी या जो स्त्री होती है ये आज से ही नहीं, मीन्स ये आदि अनादि काल से चली आ रही है कि महिलाओं ने बहुत सारी कठिन चीजों का सामना हमेशा से किया है। तो उसी अपने हकों की लड़ाई के लिए जो महिलाएं संघर्ष कर रही थी, उन महिलाओं के संघर्ष को याद रखने के लिए ही ये हम महिला दिवस मनाते हैं। अपने अधिकारों के लिए जो महिलाएं लड़ रही थी उन महिलाओं के लड़ाई को याद रखने स्वरूप ही महिला दिवस को मनाया जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत के अलावा दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। हमने भी इतिहास में पढ़ा है कि हम देखते थे कि महिलाओं के साथ में जो एक अन्याय अत्याचार हमेशा से होता जा रहा था, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में हर जगह पे महिलाओं के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका उनको अधिकार नहीं था। तो हम देखते हैं कि भारत में भी ये सारी चीजें थी जिसके लिए बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारी कार्य किए, जिनके बाद ही आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे हमें महिलाएं आज दिखती नहीं है। नहीं तो एक समय वो भी था जिस समय महिलाओं को अपने हक के लिए छोड़िए, अपने खुद के लिए मीन्स एक सिंपल चीज बोलने के लिए भी अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, उनको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं था, भी बहुत सारी चीजों के मामले में। आज भी अगर हम सोचे तो दुनिया में ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे महिलाओं के लिए जीवन आज भी बहुत ज्यादा कठिन है। मीन्स उनको अपने मन से अपने विचारों से जीने का अधिकार आज भी प्राप्त नहीं है। बट हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके हैं और आज महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसका एक जीता जागता उदाहरण हम अपने बीच में ही ढूंढ सकते हैं कि हमारे विद्यालय की जो प्रधान अध्यापिका है या जो मुख्याध्यापिका है वो एक महिला है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जो फैकल्टीज है वो मोस्ट ऑफ दी महिलाएं हैं। और हम अपने खैरागढ़ का एक उत्तम उदाहरण लें तो यहाँ की जो पुलिस अधीक्षक है वो एक महिला है जो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती है। यहाँ पे जो विश्वविख्यात जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की जो शायद कुलपति वाइस चांसलर वो भी ममता चंद्राकर मैडम, वो भी एक महिला है। तो हम सोच सकते हैं कि आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे महिलाएं पीछे रही है। तो महिलाओं ने भी सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं, और आज हम उस तुलना में नहीं जा सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं समान है वगैरह वगैरह। अब हम बोल सकते हैं कि सभी समान हैं, हम वहां पे कंपैरिजन नहीं ले सकते। आज हम देखें तो हमारी भारत की फौज होगी, फौज में भी आज हर इसमें महिलाएं हैं। मीन्स ऑफिसर रैंक से लेकर जीडी की जो एक जनरल ड्यूटी होती है उसमें भी आज हमें महिलाएं, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया या इंडियन आर्मी भी हो गया, इसमें हमें आज महिलाएं देखने को मिलती है। तो नारी शक्ति बहुत ही बड़ी शक्ति है विश्व में। क्योंकि जैसे अगर आपको याद होगा तो उस दिन एक डिस्कशन हुआ था जिसमें आदरणीय प्राचार्य महोदय ने एक क्वेश्चन रखा था कि अंडा पहले या मुर्गी। तो एक बड़ा डिस्कशन जैसे है उसी आधार पे हम बोल सकते हैं कि अगर विश्व की उत्पत्ति हुई है तो उसमें पहला आधार ही महिला है। क्योंकि महिला या स्त्री को हम जननी का दर्जा देते हैं। कोई बहन है, कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई दादी है, कोई नानी है, ये बहुत सारे रिश्ते नाते जो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे सुंदर जो रिश्ता हम बोल सकते हैं जो माँ का, क्योंकि माँ से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता इस वर्ल्ड में। अगर हम सोचे तो हम अपनी माँ से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही हमने ये दुनिया देखी है। तो इस स्त्री शक्ति को अगर हम विचार में लाए
तो महिलाओं का पुरुषों के जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे भारत के, जैसे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, उस उदाहरणों को सोचे तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि भारत का मीन्स पूरे विश्व में नाम करने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1971 की लड़ाई को याद करके देखिए, जिसमें शायद कोई पुरुष पंतप्रधान भी इतना मजबूती से निर्णय नहीं ले पाता जितने मजबूती से आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने जितनी मजबूती से दोनों तरफ की सिचुएशंस हैंडल की थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में जो अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर भी, क्योंकि साहस और जो सहनशीलता बोलते हैं वो एक महिला में एक पुरुष के मुकाबले बहुत कई अधिक ज्यादा होती है। तो वो चीज हमें सीखने को मिलती है हमारे जीवन में। मैं मेरा खुद का उदाहरण बताऊंगा कि मेरी लाइफ में भी अगर मेरी 100% की फैमिली का विचार करें तो उसमें 75% महिला है। मेरी माँ है, बीबी है, उसके बाद अभी बच्ची है। तो लाइफ में महिलाओं का स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमेशा से रहता आया है। और इस महिला दिवस के अवसर पे जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि समानता, इक्वेलिटी, शायद ये कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि हम उस दौर से आगे बढ़ चुके हैं। हर चीज में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं कि कहीं पे कुछ चुटपुट ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनकी वजह से हम दूसरी चीजों के तरफ भी ध्यान भटका देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, यहाँ पे ये असमानतावाद है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें शायद कहीं ना कहीं हमें छोड़नी है और अभी हमें उस मानसिकता से भी उभरना है कि वहां सोचना है कि अभी ये पुरुष और स्त्री समान है वाली भाषा हमें छोड़ देनी है। हम सब समान हैं, क्योंकि आखिरकार हम इंसान का रूप है, तो उसमें महिला हो गई या पुरुष हो गया, ये दोनों समान ही है। इसमें अभी ज्यादा भेदभाव की कोई सीमा बची नहीं है। तो इस खूबसूरत मौके पे मैं फिर से एक बार आप सभी को इस महिला दिवस की विशेष शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आने वाले साल में या आने वाले वर्षों में आप सभी को और भी ज्यादा सुंदर तरीके से शुभकामनाएं हमारे तरफ से मिले और ये दिन उतनी ही सुंदरता से यहाँ पे हम उसे बोलते हैं कि मना सके। तो ये प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में। और मुझे यहाँ बोलने के लिए अवसर देने के लिए हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय और आयोजकों का मैं बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विस्तार से महिलाओं की स्थिति, प्राचीन काल की स्थिति, वर्तमान स्थिति, संभावनाएं, मजबूती, सभी के बारे में प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं टीजीटी सेक्शन से आदरणीय सुधाकर नंदनवार सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय सुधाकर नंदनवार सर। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, ये वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक साथी, सर्वप्रथम मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में, महिलाओं ने बहुत तरक्की की है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी फील्ड में। वो आज पुरुषों से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है, बल्कि उनसे धीरे धीरे आगे निकलती जा रही है। परंतु आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो उनके मार्ग में, उनकी तरक्की में बाधक साबित हो रहे हैं। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं। हालांकि महिलाओं ने अपने प्रतिभा और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से इन चुनौतियों का सामना किया है, परंतु आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनती जा रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अशिक्षा की। तो आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे या तो गरीबी के कारण या पारिवारिक परिस्थिति के कारण लड़कियों को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है या पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रूढ़िवादिता,
हालांकि बहुत सी महिलाओं ने अपने आप को यहाँ पे प्रूफ किया है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे आज भी रूढ़िवादिता बनी हुई है, चाहे वो खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे एक्टिंग हो, डांस हो, किसी भी फील्ड में। आज भी हम देखते हैं कि जब महिलाएं कुछ नया करने जाती हैं तो उनको सबसे पहले प्रॉब्लम समस्या अपने घर परिवार वालों से फेस करना पड़ता है। घर परिवार वाले जब मान जाते हैं तो उसको समाज में ये समस्याएं फेस करनी पड़ती है। जैसे कुछ फील्ड कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, महिलाओं ने अपने आप को डेफिनेटली प्रूव किया है, पर उनके स्ट्रगल की जब हम कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमें ये पता चलता है कि उनके पीछे उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा बढ़ते अपराध के बारे में। आज भी हमारा देश 76 साल हम आज़ादी के हो चुके हैं। आज भी हम जनरली न्यूज़पेपर में पढ़ते, देखते या सुनते हैं कि आज भी छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें हम दुर्गा देवी या लक्ष्मी का रूप मानते हैं, आज भी महिलाओं के साथ अनाचार हो रहे हैं, उन पे एसिड अटैक किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है, उनके ऊपर कई तरह के जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ज़रूरत है आज हमें अपने मानसिकता में बदलाव लाने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि महिलाओं ने अपने आप को जो साबित किया है उसको हम दुनिया को दिखा सके। हालांकि महिलाओं ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। बढ़ते अपराध, इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद भी महिलाएं सशक्त हुई हैं। हम कुछ उदाहरण लें एसिड अटैक की, तो आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एसिड अटैक के बाद भी अपने आप को साबित किया, वो वहीं पे थमी नहीं, रुकी नहीं। अदरवाइज हमें ये लगता है कि हमारा चेहरा सबसे प्यारा है और हम इसके बाद कुछ भी बचा नहीं है, परंतु इन सब के बावजूद भी महिलाओं ने समाज में सरवाइव किया और एक उदाहरण, एक मिसाल पेश की है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज और पुरुष को अपनी मानसिकताओं में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जिनका सख्ती से पालन हो। हम महिलाओं को जेंडर से न पहचाने बल्कि उनकी एक अलग पहचान है, उनसे पहचानने की कोशिश करें। तो जरूर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जैसे जैसे समाज जागरूक होगा, हम अपनी मानसिकताओं में बदलाव लाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब महिला पूर्ण रूप से सशक्त हो जाएगी। और इसी के साथ मैं एक संस्कृत का श्लोक कहना चाहूँगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी निवास करती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। एक और श्लोक है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो ज़रूरत है आज हमें अपने आप में बदलाव लाने की। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुधाकर सर ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं का स्टीरियोटाइप वो अपनी तरफ से तो सिद्ध कर रही हैं, पूरी तरह से चेंज करने की अपने आप को प्रूव भी किया है, लेकिन पुरुषों को भी उनके प्रति जो अपनी सोच है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। काफ़ी कुछ सुधार आ रहा है, लेकिन फिर भी और आज भी अभी भी बहुत सारी चीज़ों में जो जैसा कि सर ने कहा कि हम उनके जेंडर से ना पहचाने, उनके कर्मों से, उनके कार्यों से, उनके अथक प्रयासों से, उनके हम डेली के हाउस होल्ड कोर्स और हमारे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इन सब चीज़ों से हम उनको जानें, पहचानें। और एक परिवार को चलाने में कितनी बड़ी अहम भूमिका होती है। कभी कभी उनके डिसीजन ऐसे रहते हैं जो शायद मुझे लगता है कि कई बार मैंने भी महसूस किया है कि कभी कभार मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन ठीक होगा, लेकिन जो मैडम बोलती है ना वो बात होती है, तो हम मानते हैं उनकी बात को। चाहे कभी कभार ऐसा लगता है कि पहले थॉट में कि हो सकता है कि शायद ये ना हो पॉसिबल, लेकिन वैसा ही होता है। किसी के प्रति सोच पता नहीं कौन सा सिक्स्थ सेंस होता है फीमेल्स के पास कि वो चीज़ जो ऑब्जर्व कर पाती हैं वो शायद मेल नहीं कर पाते।
तो इसीलिए कभी कभार जो परिवार के डिसीजंस भी होते हैं तो उनकी अगर सहमति होती है और उसके बाद जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वो फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। जहाँ ऐसे ही डिसीजन लिए जाते कि नहीं आप कुछ नहीं जानती या मतलब उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमको अपने विचारों में और अपनी सोच में भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का एक जो उपलक्ष्य है वो सार्थक हो सकता है। तो एक पहले सीरियल आता था दूरदर्शन पे, उसका अपराजिता के नाम से आता था कि नारी का सम्मान करो मत उसका अपमान करो, नारी है अपराजिता, नारी है अपराजिता। सो इस कहावत को ऐसे ही चरितार्थ नहीं कहा गया है, उनको अपराजिता ऐसे ही नहीं कहा गया है, उनके कुछ अलग सेंस होता है और उनके जो डिसीजंस होते हैं लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर। A very good afternoon, respected principal sir, all respected ladies out here, and all male teachers also. So, a very good morning to all. This was such an occasion that despite of a paining neck, despite of a stressed neck, I could not resist this opportunity to speak on such an auspicious occasion. And my respect for the female fraternity is reflected in the fact that I am one of the biggest devotees of Ma Durga, and I try my best to be a very good devotee of Ma Durga. I try every possibilities to show respect to Ma Durga in all possible actions. And if we look at mantras of Ma Durga, then there is a very famous mantra, Ya Devi Sarva Bhutesu Matri Rupen Sanstita Namastasya 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 Namo Namah. And there are several mantras of Ma Durga, like not only Matri Rupen Sanstita, it's also Vidya Rupen Sanstita, Buddhi Rupen Sanstita, Sakti Rupen Sanstita, Chudha Rupen Sanstita. So this mantra itself reflects the fact that how multitasking women are. So, because we are expecting all these things from Ma Durga, we are expecting Buddhi also, we are expecting Sakti also, we are expecting Chudha also. I mean, we are hungry and we are asking for food. So that this mantra itself says that how powerful a woman is. But my opinion is that instead of praising women, it's time to act now. So instead of praising them, it's the high time to start acting. Acting in the sense that it's our conventional mindset that we appreciate ladies for being beautiful. It's good, but instead of appreciation, we could also say that it's okay not to be beautiful. Okay, so because we should not put much expectations on the female, we should not put much expectations from the ladies. Another thing is that we say that women are multitasking, they can handle multiple things at the same time. So instead of saying this, we should try to assist them so that their multitask could be reduced. So instead of praising, we have to reflect all these appreciations in our actions. So that's my thought on this particular International Women's Day. And I wish you all a very happy Women's Day once again. And to all the male staff out here, my message is that stop praising, start acting. Thank you. Thank you, Pathak sir. In a very aphoristic style, you have told the true meaning of celebration for celebrating this International Women's Day. We have not to praise them, we have to assist them. We have to help them as much as we can do, and we can reduce their burdens also. So thank you, Dr. Amarnath Pathak sir. Now it is the time, dear teachers, dear female teachers, all the women, we on behalf of entire Kendriya Vidyalaya Heragarh family, Honorable Principal sir has arranged a token of love from the school. So I invite Honorable Principal sir to distribute those token of love, and one by one I will call the names. So first of all I would like to invite respected Rachna Pal madam. I can see she is the senior most in age, and we respect you very much madam. Please come and
receive this token of love from Honorable Principal, sir. Now I invite respected HM Madam, Sanjulka James Madam. Madam, please come and receive this token of love. Respected teachers, kindly pardon me. I don't know your seniority, but I just call you by PGT. So now I can see Lalita Madam is sitting there. I'll invite respected Lalita Madam. Next, I would like to invite respected Aman Kumari Madam. Respected Aman Madam. I wish you very happy International Women's Day. Next in line, I would like to invite respected Amrita Chaudhary Madam. I can see here. Hearty congratulations, Madam. Next, I would like to invite respected Monica Sharma Madam. Respected Monica Sharma Madam. Congratulations, Madam. Next, I invite respected Garima Devedi Madam. आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। नेक्स्ट आई इनवाइट ऐश्वर्या मैडम। आई कैन सी रिस्पेक्टेड ऐश्वर्या मैडम। Congratulations, madam. Now it is the time to invite Dr. Shravani madam. Dr. Shravani madam. बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। Now invite respected Reena Devi madam. Kindly let me know if anybody is left. Those who are sitting here. Okay. Okay. Now, as we all know that this Didi, we can say that they do a lot of work, a lot of hard work for Kendriya Vidyalaya Khairagarh. So we appreciate their work, and on this auspicious occasion of International Women's Day, we want to welcome them. So now I invite. So now I invite first of all मुन्नी दीदी। मुन्नी दीदी आप आएँ और अपना ये एक विद्यालय की तरफ से भेंट स्वीकार करें आदरणीय प्राचार्य महोदय के माध्यम से। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जानकी दीदी को। जानकी दीदी भी आएँ और ये एक उपहार स्वरूप भेंट स्वीकार करें। और अभी दीदी सोनिया दीदी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सोनिया दीदी आएँ और अपना ये टोकन ऑफ लव केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ से प्राप्त करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ इट इज द टाइम टू इनवाइट ऑनरेबल प्रिंसिपल सर फॉर हिज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल सर काइंडली कम एंड ब्लेस अस। Good morning, ladies and gentlemen. Now present here. Without wasting much time, I could say, wish you a very happy International Women's Day.
यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, सल्तनत डायनास्टी, मुगल डायनास्टी और द प्रेजेंट इंडिया, इट इज़ मॉडर्न इंडिया, ये अगर हम बताएं द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया तो बहुत समय लगेगा, इसलिए अति संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में महिलाओं और स्त्रियों, नारियों की जो दशा थी, उनकी दशाओं में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। कुछ समय रहा बहुत स्वर्णिम युग या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और कुछ समय रहा महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही होगी। लेकिन हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी महिलाओं के बारे में बताया, उनका गुणगान, उनके शक्तियों के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में और कुछ और जानकारी दी गई। तो बहुत अधिक न कहते हुए हमारे स्कूल की वेबसाइट में जो डिस्प्ले हो रहा है, इस शब्द का वाक्य का चयन करने में हमने 2-3 मीटिंग ली थी। ऑनरेबल पाठक सर इज वन ऑफ द बिजनेसेस। सशक्त नारी से ही सशक्त बनेगा सशक्त समाज। तो ये हमारा माइंडसेट ही है कि हम स्त्रियों को, नारियों को, महिलाओं को किस दर्जे पर रखते हैं, और ये हमारा समाज है, महिला समाज या पुरुष समाज है कि जो दशा या दुर्दशा या जो अच्छी दशा होती है उसके लिए हमारा समाज ही जिम्मेदार है। तो हम नारियों की स्थिति के लिए स्त्रियों या नारियों को, महिलाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, या किसी पुरुष को भी हम जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं कि इनके घर में महिलाओं पर अत्याचार होता है या उनकी दशा अच्छी नहीं है। तो जैसा हमारा समाज होगा वैसे ही हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। बाल्यकाल से ही जब हम बच्चों के मन में जो विचार भरते हैं, जो आइडियाज़ देते हैं, जो शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से वह पलता और बढ़ता जाता है। यदि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बात करेंगे तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, इतना कहना ही पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज ही है जो कि कभी महिलाओं पर अत्याचार किया होगा, या फिर हमारा समाज ही है जो कोई महिलाओं को बहुत ऊंचा उठा दिया जो है, वास्तव में उसके हकदार है अथवा नहीं। तो आदरणीय पाठक सर के विचार से मैं सहमत हूँ कि हम ही हैं, हम मतलब हमारा समाज ही है, कभी पुरुष प्रधान समाज बना देता है, कभी महिला प्रधान समाज बना देता है। ये हमारे माइंडसेट है और हमारी मानसिकता ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि केंद्रीय विद्यालय हम बात करते हैं, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन देयर वेजेस। महिलाओं की सैलरी और पुरुषों की सैलरी में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। दे आर गेटिंग इक्वल रिम्यूनरेशन ऑन सैलरीज एंड वेजेस। ये कहीं हो सकता है किसी छोटे समाज में, किसी राज्य सरकार में कहीं की महिलाओं के लिए कार्य अवधि अलग बना दी हो, उनके वेतन अलग दिए गए हों, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं गया है। जहाँ पर नर और नारी है, मतलब इक्वल राइट, इक्वालिटी की बात करते हैं। जहाँ और भी है नर नारी के साथ, जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो वहाँ डैश मतलब संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, स्त्री पुरुष, नर नारी, भाई बहन, पति पत्नी। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लगेगा आपको इन शब्दों को देखते हुए कि कोई ज़्यादा वेटेज है रखता हो या कोई कम जिसको आंका जाता है। तो जहाँ तक उनकी शक्तियों को प्रूव करने की बात है या अपना हक जताने की बात है, तो कभी भी किसी काल में, वैदिक काल से लेकर आज तक, मार्गरेट थैचर नाम सुना होगा से लेकर प्रधानमंत्री तक, भंडार नायक, श्रीमती भंडार नायिका तक, प्रतिभा पाटिल से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक। यदि खैरागढ़ की बात करेंगे तो आदरणीय मिथिलेश सर ने नाम लिया था, हमारे IPS ऑफिसर है, महिला है। जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है वो भी महिला है।
तो यहाँ महिला देख करके सिलेक्शन होता नहीं है या पुरुष देख के सिलेक्शन नहीं होता है, तो वी ऑल आर इक्वल। तो इसी इक्वालिटी के मद्देनज़र किसी कारणवश उनकी दशा, या हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं वहाँ महिला प्रधान समाज है, उनको उनके जो कार्य प्रणाली है, उनको जो भी दुकान संभालना है, पारिवारिक जो भी बड़ा डिटेल रखना है, तो CBSE की हम बात करते हैं। इस मंच से मैं बार बार यही शब्दों को दोहराता रहा हूँ कि मार्कशीट में माता और पिता दोनों के नाम होते हैं। CBSE के जो मार्कशीट मिलता है बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड, तो ऐसे देखा जाए तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं होता है। हमारी रचयिता हिंदी के महाकवि होंगे, महाकवित्री होंगे, जहाँ कवि है कवित्रियाँ भी हैं, वहाँ लेखक है लेखिकाएँ भी हैं। तो नारी तुम एक श्रद्धा हो, तो संस्कृत का श्लोक होता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवी और देवता निवास करते हैं। जो हिंदी का जो वाक्य बोल रहा था शब्द, वहाँ देवी एंड देवता, 33,000 देवी देवताओं को साक्षी मान करके विवाह संपन्न हुआ। 33,000 देवी देवताओं को साक्षी मान करके ये कार्य संपन्न हुआ, पूजा अर्चना। तो जहाँ पूजा है वहाँ अर्चना भी है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सुमन भी है। तो ये एक नाम है, एक सुंदरता के लिए जगत जननी का नाम दिया गया है। तो हमारा माइंडसेट है कि हमारा समाज कैसा हो, या हम महिलाओं के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, या महिलाओं को कितना सम्मान दे देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पक्ष और विपक्ष, एक नारी सशक्तिकरण पर बहुत सारे डिबेट हुए हैं और होता रहा है। आज भी एक देखा जाए तो एक डिबेट या मुद्दा, डिबेट का मुद्दा है, वाद विवाद का विषय हुआ है। कुछ पुरुष प्रधान समाज का ये कहना है कि नारियों को जो हम शक्ति दे दिए हैं, जो पावर दे दिए हैं, जो लिबर्टी दी गई है, वो अपनी सीमाओं से लांघ करके आगे चली जाते हैं। अभी भी हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं की जो संख्या होनी चाहिए वहाँ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय में इलेक्शन हुए हैं, उसमें नागालैंड में 5 महिला कंटेस्टेंट या उम्मीदवारों में से एक महिला ने विधानसभा जीता है, एंड शी इज़ द फर्स्ट वीमेन मेंबर ऑफ असेंबली। तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि भारत सरकार ने महिलाओं के प्रति या महिलाओं को शिक्षित करके बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आलोचना हमें सुनने को मिलती है, समालोचना, कि महिलाओं को इस तरह से इतने अधिक नहीं ऊपर उठाना चाहिए कि अपना सारा दायरा, अपनी सारी जिम्मेदारी और हम बोलते हैं या दायरा, उसको लांघ कर जाए। तो हम बैलेंस की बात करते हैं, तो महिलाओं को भी अपने सीमित दायरे में रहना चाहिए, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर, न जैसे फीमेल डोमिनेंट या मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं होना चाहिए। यदि हम फैशन और ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हम बात करते हैं, हमारा मीडिया चैनल या फिर टेलीविज़न रिपोर्टर या अखबार के जो रिपोर्टर्स होते हैं, वहाँ पर उनकी छवि को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं। तो ये भी एक समाज के प्रति नकारात्मक संदेश जाता है कि वो अपने दायरे में रहें। तो जैसे नर और नारी, देवी और देवता की हम बात करते हैं, तो हमें वहाँ हर जगह इक्वालिटी मिलना चाहिए। किसी समय में महिलाओं को दबा दिया गया था, उनकी शक्ति को दबा दिया गया था। भारत हिंदुस्तान में सल्तनत काल में, मुगल काल में विदेशी आक्रमण हुए हैं। यदि हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कास्टिज्म है, सोशलिज्म है, और धर्म की जो हम बात करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग उनके अपने दायरे में रखते हैं, मानने का तरीका, आस्था और भक्ति। लेकिन संक्षेप में हम कहते हैं तो सभी दृष्टि में माता के रूप में, यदि माता है तो रानी दुर्गा के रूप में, रानी लक्ष्मी के माता लक्ष्मी के रूप में, और माता सरस्वती के रूप में जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें नारियों में या देवी के रूप में सबसे पूजनीय देवी माना जाता है। तो अगर यहाँ इस मन से मैंने कहा था कि
बहुत सारी देवियों में से मनसा देवी भी हुआ करती है, कालांतर में उनकी अर्चना पूजा घट गई है और 3 जो देवियाँ हैं यही सभी पूजनीय हैं। तो हमें बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है, तो आने वाली सोसाइटी को हमारा संदेश होगा या हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। तो सबसे एग्जाम्पल दिया गया उनकी रिमोडरेशन में, उनके वेतनों में और उनके कार्यावधि में। तो किसी भी वजह से किसी भी परिवार में कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि पुरुषों को हमेशा खड़ी खोटी सुनाती हैं या पढ़ाते समय टीचिंग में भी कुछ बोलते रहते कि देखो इसकी वजह से तलाक हो गया, उसने उसको तलाक दे दिया, उसकी जीवन उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। तो उसके लिए केवल मेल ही जिम्मेदार नहीं है, समहाउ जो जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की हो सकती है। शादी जो है इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यदि इस तरह से परिवार में विवाद होता है पति पत्नी को लेकर के, मेल फीमेल को लेकर के, भाई बहन को लेकर के, तो उसके लिए हमारा समाज, हमारा सोसाइटी ही जिम्मेदार है कि हम कहीं ना कहीं किसी को बड़ा किसी को छोटा बना देते हैं। हमारा धर्मशास्त्र भी यही कहता है कि कोई भी समारोह या धार्मिक अनुष्ठान नारियों के बिना अधूरा है, या जहाँ स्त्री नहीं आती है या उस पूजा अर्चना में, तो वहाँ उस पूजा को अधूरा माना जाता है। तो हर काम में, जीवन के हर क्षेत्र में, खेल हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, संगीत हो, जहाँ सभी को समान अवसर दिया जाता है, तो हम समान अवसर की बात करते हैं। हमारा संविधान सभी को समान अवसर दिया जाता है और उसी में व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो अपने आप को साबित करता है। तो हम पुराने बातों को भूल जाएं और केवल इक्वालिटी की बात करते हैं। स्कूल में रजिस्ट्रेशन देंगे तो लगभग आप क्लास टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तो हमारा इनरोलमेंट है लगभग 900 बच्चे हैं, तो 400 बॉयज़ हैं, 400 गर्ल्स हैं, 450 है। तो वहाँ कहीं पर भी CBSE डिक्लेयर करता है तो महिलाओं की प्रतिशत 5% इतना है, पुरुषों की प्रतिशत इतना है, ओनली फॉर काउंटिंग पर्पस या एक आंकड़ा है। फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, अभी आप क्रिकेट की प्रतियोगिता हम देखेंगे महिलाओं के लिए अलग से IPL या हम बोलते हैं विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो इस तरह से उनके लिए सुविधाएं भी मिल रही है या हम उसको उस नज़रिए से देख पा रहे हैं। तो किसी कारणवश से महिलाओं को जो सुविधाएं, जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो ये मौजूदा समाज, हमारा प्रेजेंट सोसाइटी उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। UN की जो पहल है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाते हैं या महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो केवल आज की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हमने महिलाओं को सम्मान कर दिया और कल ही हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं कि घरेलू हिंसा होते हैं, घरेलू हिंसाओं में महिलाओं को जलाया जाता है। तो ये कुछ हमारे परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज है जो हमें पूरी परंपराओं को तोड़ना चाहिए और आधुनिक समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। एक अंत में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी और बहुत समय तक सती प्रथाएं थी, जहाँ पर पति के मृत्यु के बाद महिला को या नारी को या स्त्री को उस चिता में जलना होता था, जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और कुछ समाज सुधारकों के प्रयास से शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और जिसके तहत आप देखेंगे वैदिक काल में भी हमको देखने को मिलता है। अपाला और घोषा नाम की महिलाएं होती थी जो बहुत पढ़ी लिखी थी। भारत में लीला घोष, लीला सेठ जैसे न्यायाधीश भी रही हैं। तो ये समय समय की बात है कि कहीं पर उतार और चढ़ाव हुआ होगा। तो मैं बात कर रहा था सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को लगभग आज गिने चुने प्रांतों में या कुछ जगह में ही ऐसे सुनने को मिलता है। तो उसके लेखकों ने या विचारकों ने या उस समय के समाज ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया था कि पति के मरने के बाद में स्त्री को अग्नि में, चिता में जलना ही पड़ता है। ये हमारे सिलेबस में आ गया, हमें ऐसा देखने को मिलता है।
लेकिन यदि हम इसका विश्लेषण या एनालिसिस करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, चीड़ फाड़ करके हम एक नतीजे पर लाना चाहते हैं, तो एक्चुअल जो मीनिंग होता है सती प्रथा का किसी महिला विशेष से संबंध नहीं है, किसी स्त्री के लिए संबंध नहीं है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि मालिक के मरने के बाद उस पर जितने भी डिपेंडेंट थे, चाहे उस घर के पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली हो, घरेलू मवेशी हो, माता पिता भाई बहन, जो कि उस मालिक पर, उस पति पर डिपेंडेंट थे, उनके मरने के बाद उनका अस्तित्व विहीन हो जाता था, दाने दाने के लिए तरसने को होते थे, या फिर उनका जीवन खतरा हो सकता था, या फिर किसी तरह से दूसरी परेशानियां आ सकती थी। इसलिए मालिक के मरने के बाद में उस घर के सभी लोगों को का अस्तित्व समाप्त माना जाता था, इसलिए उनको चिता में जलना होता था, ना केवल उस पत्नी को। सती का मतलब होता है सत्य और प्रथा का मतलब होता है प्रथा, आप जानते हो, रिवाज। तो सती प्रथा को कालांतर में महिला के साथ जोड़ दिया गया और पति के मरने के बाद में उस चिता में पत्नी को जलकर मरना होता था और उसमें जबरदस्ती आग में झोंक दिया जाता था, जो कि एक कुप्रथा थी। सच्चाई का पालन करना, सच्चाई का पालन करना, सती प्रथा मतलब सत्य के राह पर चलना, और ये प्रथा है, सच्चाई होता है। तो जैसे जैसे हमारा समाज नारियों को टेलीविज़न चैनल के माध्यम से दिखाता है, मूवी में दिखाता है, फैशन कंपटीशन में दिखाता है, ब्यूटी कंपटीशन में दिखाता है, हमारा समाज उसी आईने से, उसी दर्पण में जिस रूप में दिखाया जाता है, तो उसी तरह से सोच बना लेता है। तो यदि हम महिलाओं की दुर्दशा यदि हुई होगी, तो इसका जो श्रेय जाता है महिलाओं को ही दिया जाता है कि किसी कारणवश वो कमज़ोर रही होंगी। कारण कुछ भी हो सकती है, हमारे वैदिक ग्रंथ भी हो सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हो सकता है। छोटा सा स्टेज देना चाहता हूँ कि ईश्वर की रचना ऐसी हुई है कि पति के बिना पत्नी अधूरी है, पत्नी के बिना पति अधूरा है। तो कहीं पर भी किसी को भी एक ऊंचा या नीचा नहीं दिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि पत्नी पर पति शासन करेगा और पत्नी पति पर आसक्त होगी। ये धर्म ग्रंथ के हमारे शब्द हैं। तो ईश्वर की रचना ही ऐसी है कि नर और दोनों एक ही सिक्के के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो हम केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ या भारत सरकार या हमारा वर्तमान समाज स्त्री और पुरुष को समानता की नज़र से देखता है। हम सब समान हैं और सभी क्षेत्र में हम समान काम करेंगे और समानता का भाव रखेंगे। किसी भी जगह में कहीं भी उच्च और नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, आपने बहुत विस्तार से सभी पहलुओं पे, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के सभी पहलुओं पे विचार विमर्श किया और हमें अपने ज्ञान से अवगत कराया। अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गोले गुप्ता सर को। वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय गोले गुप्ता सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय और आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदया का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया और साथ ही इतने अच्छे रूप से सब कुछ संचालित हुआ। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्राचार्य महोदय का और भी धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को कवर किया, जिसमें सती प्रथा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया और हमें इसकी जानकारी भी दी। जो राजा राम मोहन राय जी थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। अब छोटा सा किस्सा है, जब वह 4-5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो दुर्भाग्यवश उस समय जब सती प्रथा चल रही थी तो उनकी माता जी को सती होना पड़ा और उसके बाद राम मोहन राय जी के जो भैया और भाभी थे वही उनका देखभाल कर रहे थे। तो जब वो लगभग 10-11 साल के हुए, अब 10-11 साल मतलब समझ लीजिए अभी के जो बच्चे कक्षा 4वीं-5वीं में हैं उसी एज के थे और दुर्भाग्यवश फिर से उनके भैया का देहांत हो गया और उसके साथ उनकी भाभी को भी सती होना पड़ा।
उसके बाद 10-11 साल की अवस्था के बाद से राजा राम मोहन राय जी अकेले ही संघर्ष किए और उन्होंने जब वह आगे आए तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ध्यान दिया और सती प्रथा के अंत के लिए अपना बहुत ही योगदान दिया। तो आदरणीय प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमें अवगत कराया। मैं आदरणीय मिथिलेश सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में जो महिलाएं हैं उनका योगदान बताया और साथ ही वर्तमान में महिलाएं जिस तरह से आगे आ रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही सुधाकर सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने भाषण के द्वारा तो सब कुछ अच्छा बताया ही, साथ ही माइक अरेंजमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय पाठक सर, उन्होंने जो कहा अपने भाषण में जो कहा कि वी शुड नॉट एप्रिशिएट, वी शुड एक्ट एंड कंट्रीब्यूट। हमें सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना योगदान भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर। साथ ही शुभम सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वीडियोग्राफी के द्वारा इस महत्वपूर्ण पलों को इसमें कैद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी दीदी, नंदलाल भैया, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत योगदान दिया। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लोकेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक मन संचालन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और गोले गुप्ता सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित किया और बहुत अच्छा मैसेज अपनी कविता के माध्यम से दिया। और अंत में एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद।